We are going to start this lecture. So in the last lecture, we have completed the root locus, and we have done problems as well as different magnitude and angle condition. So now today we are going to start our new topic, that is now frequency domain analysis. And in this one, we will have first the Bode plot, but along with that we have other plots also. One is your polar plot, other one is your Nyquist plot also. So first of all, what is frequency domain analysis? What is the significance of this frequency domain analysis? And after that, we will go to the different aspects of different plots, how these plots are beneficial for getting the stability or to understand the control system stability. So this is basically the thing. But before going to the deep of this frequency domain analysis, the first question arises that why we are going for frequency domain analysis. Still, we have a time domain analysis. We have learned all these things. But what is the advantage of frequency domain analysis over to your time domain analysis? So to discuss this whole thing, I'm going to present the screen in which there is some literature, and we will discuss this one, and then we will move towards the Bode plot. It is nothing but a plot which will be beneficial for understanding the stability in control system using frequency domain analysis. So I'm going to present the screen. तो आई थिंक स्क्रीन सबको दिख रही है. Yes, sir. Okay, so you can see that on your screen that frequency response and Bode plot. So first of all, there is some preliminary things are there. Initial the things that you require to understand. Till your last class, what we can say, we have understand the control system into two behavior. One is a transient behavior, other one is a steady state behavior. But transient is a part in which your the system follows the variation with respect to your time. In a steady state, it means when it reaches to its final value. So basically, the frequency domain analysis, it means now you are considering the frequency components when you are having a different time, and in different time you are having different what we can say characteristic of the signal. So the main advantage of this approach is it provides the inside view of the circuit elements which will be influenced by the frequency response. Understand the point? Because all the circuits are made of different components, and all the components are having the different characteristics. But in your time domain, what you are doing, because when we are considering the RLC components, so what we are saying that these the behavior of these components are not basically changing with respect to your time. But as we know that L and C are the major component which is dependent on the frequency. So when you analyze these components on the basis of frequency, you will actually get the idea that whether the response which is depending on these components is stable or not. Or you can say how it is influenced the frequency output or circuit output or system output. So this is nothing but basically what we are saying, why we are going for frequency domain analysis of frequency response, because it provides how the circuit elements influence the frequency response. If its response is stable, just like a steady state one, it means as you are proceeding towards a time, its frequency response is stable. It means you can use these circuit or these components in that domain also.
So this is the basically thing, and that's why to consider the stability concept, frequency domain analysis becomes a major part for circuit analysis. And in this one, first of all, we will consider the Bode plot. After that, we will go through the different other plots also. But Bode plot actually, you can see that when we are, अगर आपने कुछ चीजें देखी होंगी, तो when we are talking about the different research papers also, so right now the Bode plot is still using in your stability conditions to predict the instability conditions. So what is exactly the Bode plot? Exactly, the Bode is actually a scientist name who given this plot to examine the stability. The Bode plot is nothing but this is a graphical plot of magnitude, and this one the magnitude is described in dB. dB means that is decibel. So what exactly this one we will proceed on, तो उससे आपको जो जो चीजें समझ में आती जाएंगी और क्लियर होता चला जाएगा. बट अभी ये है कि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप पूछते जाएंगे. मेनली इन फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस या बोडे प्लॉट, इन सब चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है बिकॉज जब भी हम भी कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हमें कुछ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट्स बनाने पड़ेंगे और वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट्स मींस टाइम में इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या वो फ्रीक्वेंसी या किस फ्रीक्वेंसी पे वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे वो परफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, परफॉर्मेंस अपना अप टू द मार्क नहीं दे रहे हैं, तो हम उस फ्रीक्वेंसी जोन में ऐसे कंपोनेंट्स के सर्किट को हम यूज नहीं करेंगे. Right, so we are going towards your next point, that is your Bode plot and the basic concept of Bode plot. I'm just scrolling down the. So first of all, you know all thing about this pose, zero and stability. I already explained this one. Just suppose you are having a transfer function in the forms of numerator and denominator. As such, you can see the equation number 1.1 and 1.2. So in 1.2, you are having numerator and denominator in the factors form. And if you are equating the numerator with 0, you are getting zeros. And if your denominator equating by 0, you are getting poles. So it is means with the location of poles and zeros, you can easily know the behavior of the system, whether it is in the right half of the S-plane or left half of the S-plane. And on the basis of this one, you will get the concept of stability. Now, second thing is, as I already said that the Bode plot is nothing but this is a plot in which you have to get the idea of magnitude in terms of decibel. The decibel is nothing but the unit in which you describe a magnitude. Magnitude is nothing but what if you are having a signal. Just suppose in your communication you are a simple signal, that is A sine omega t plus theta. It means A is nothing but your amplitude, omega is a frequency, and phi is your phase. So in your frequency domain analysis, these three components are the major components, and on the basis of these three components, you are going to analyze the plot. You are going to analyze or not analyze. You are going to draw the plot with respect to this one. So what you are having in your Bode plot, you are having two plots like that. One is your magnitude plot, one is your phase plot. And magnitude plot, of course, you know that there is one side is a magnitude, and this magnitude is in decibel, जैसा अभी यहाँ पे बताया था. Similarly, the other one क्या चीज है कि frequency domain analysis हो रही है, इसका मतलब है किस चीज का variation होना है. Of course, frequency का variation होना है. That's why frequency के base पे analysis करनी है और किसकी analysis करनी है, magnitude की. In the same manner, we have another plot in which the next term is phase, and phase is again considered to be varied with respect to your frequency. It means now we have in your Bode plot, you are having two plots. One is your magnitude plot
वन इज अ फेज प्लॉट। और इसको याद करने के लिए तरीका क्या है, आपने एक किसी सिग्नल को ले लिया है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो आप गौर कर सकते हैं ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज फेज। सो इट मींस ये थ्री कंपोनेंट्स हैं और हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओमेगा वैरी कर रहे हैं, तो दो टर्म्स कौन कौन से रह गए, एक आपका एम्पलीट्यूड रह गया जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, और एक फेज रह गया है। तो सिंपली हम चाहे वो पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे या हम अभी आपको न्यूक्लियस प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ऑल में सभी चीजों में यही तीन कंपोनेंट्स हैं। और सब में किसका वेरिएशन होगा, सब में फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा, बट चेंजेस क्या आएंगे, वन इज योर variation in magnitude with respect to variation in frequency. One is variation of phase with respect to variation in frequency. It means you are varying the value of omega, and according to that one, with respect to that variation, you are getting the value of magnitude, right? So this is the overall thing जिसको आपको समझना है कि what is a decibel. अब मैग्नीट्यूड के जब बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इज डेसिबल। तो नीचे हम लोग आ रहे हैं, देखिए अब there are certain some logical operations or what you can say log operations are there. So log a dot b, ab is log a plus log b. It means this is nothing but a mathematical terms जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और ये आप लोग अपने पहले से अपने लोअर स्टैंडर्ड क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जस्ट सपोज आपको किसी भी चीज को डेसिबल में निकालना है, तो इट्स आंसर इज नथिंग बट जो भी कंपोनेंट्स आपको दिया हुआ है, जस्ट सपोज यू आर हैविंग अ मैग्नीट्यूड लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड बाय m, और उसी को कह दिया जाए नाउ कन्वर्ट इनटू डेसिबल, तो जस्ट नथिंग बट 10 log and that magnitude. It means 10 log m will give you whatever answer that will be nothing but in decibel, राइट। सो अगर यहाँ पे जैसे सपोज करिए कि आपका पावर रेशियो दिया हुआ है जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि in a certain circuit just suppose your output to input power ratio is P out upon P in, it will have a value, but if you want to convert this into decibel, it means just you have to write 10 log P out upon P in, so that whole power ratio will be converted in decibel. So decibel कोई बहुत टफ नहीं है, but ये आपका एक जो भी कन्वर्जन कर रहा है वो अब सिंपल मैग्नीट्यूड से आपका एक व्हाट वी कैन से लॉगरिथम मैग्नीट्यूड पे उसने चेंज कर दिया। अब पार्ट हम यहाँ पूछे कि डेसिबल में हम जा क्यों रहे हैं। इट मीन जनरल एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्डे प्लॉट ओवर टू द सिंपल ग्राफिकल और स्टेबिलिटी मेथड्स, अदर स्टेबिलिटी मेथड्स। तो पहली बार ये चीज समझ के चलिए कि हमारे जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी आपके सर्किट्स होते हैं, जब हम उसको लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में एनालाइज करते हैं तो उनका बिहेवियर हम एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक परफॉर्म कर रहा है, इट इज अप टू द मार्क। बट व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी it may possible the behavior of that system will not satisfactory. But the thing is कि अब उस हाई फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए हमारे पास आज के टाइम में एनालिसिस करने के लिए एक पहली चीज तो क्या है, हमारे पास मेथड्स नहीं है, और जैसे हम इस मेथड के थ्रू यूज कर रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना दैट इज ऑल्सो अ वेरी टिपिकल थिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये तो जरूरी हो ही जाता है कि हम ऑन पेपर तो ये चेक कर ही लें कि वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल इन हाई फ्रीक्वेंसी और नॉट। अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है तो हम एक डेटाबेस पे ये एक दे सकते हैं कि हाँ अप टू दिस फ्रीक्वेंसी दिस सर्किट विल परफॉर्म ओके, राइट। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बोर्डे प्लॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोग ये जानते हैं लॉगरिथम स्केल पे हमारा जो भी यूनिट्स होती हैं या मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं। कैसे कि जस्ट सपोज हम एक किसी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 10, तो हम उसको एक ग्राफ पेपर में अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो इट विल रिक्वायर 10 यूनिट्स टू कवर दैट एरिया, दैट लेंथ। In the similar manner,
अगर हम उसी को बोडे प्लॉट पे ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड में, तो जैसे ही हमने उसको डेसिबल में कन्वर्ट किया तो अब वो 10 यूनिट की जगह पे log 10 हम लेंगे, बिकॉज हमने उसको डेसिबल में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज नथिंग बट log 10। तो जैसे ही हमने उसको log 10 लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, log 10 becomes 1. It means that whole unit changed to just a 1 unit. Similarly, log 100, it means this is just equal to 2. It means जहां पे 100 लेंथ का हमें एक स्पेस चाहिए था, वहां पे आपका वो एक 2 यूनिट्स के बेस पे हो गई। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड, जहां पे और जगहों पे एनालिसिस करने के लिए हमें एक सिंपल ग्राफ पेपर पर देखा जाए तो वी विल नॉट हैव दैट मच हायर लेंथ ऑफ द टू ड्रॉ, but in your Bode plot you have a decibel concept, you can say you are having a logarithm concept, so you can just convert that whole quantity into just a small magnitude, and you can just analyze that one in a very efficient manner, and that is basically the main significance of Bode plot. सिंपली आपके मार्केट में भी ग्राफ पेपर इजी है, आप लोगों ने सब में उस पर काम किया है। ऑन द सेम बेसिस आपके मार्केट में सेमी लॉग पेपर एंड लॉगरिथम पेपर ये भी अवेलेबल है, और इसीलिए बोडे प्लॉट में हमारा जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इन योर डेसिबल या लॉगरिथम स्केल पे होता है, बट आपका जो वाई एक्सेस होता है ये आपका एक तरीके से जो एक्स एक्सिस है वो आपका लीनियर स्केल पे रहता है, और वो ऑटोमेटिकली लॉग में ही होता है। तो इसलिए हम लोग इसको जनरली सेमी लॉग पेपर हम लोग जनरली बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डेसिबल जो है आपका वाई एक्सिस पे है, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और आपको वाई एक्स एक्सिस जो है वो उसमें फ्रीक्वेंसी रहती है, एंड व्हेन यू पुट द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज you will get a particular value of magnitude, and just you have to draw and have to get the idea of stability. So we will proceed on this one and we will get this one, the whole thing, when we will do the questions. तो जो मैं जो बता रहा था आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, just suppose you are having a simple magnitude mod h 1 root 2 2 4 5 and 10, along with that you are having its magnitude in decimal. So this is 20 log 1, 20 log this one, like that. So you can convert this one into this one. तो अगर किसी फंक्शन को या करंट रेशियो को हमें अगर चेंज करना है तो दिस 20 लॉग एंड देन मॉड ऑफ h दिस वन। तो आप किसी भी चीज को अगर आप डेसिबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यू कैन कन्वर्ट दिस बाय दिस फॉर्मूला 20 लॉग एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट होल थिंग। तो जैसा कि सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, लॉगरिथम स्केल लाइक द डेसिबल स्केल proved to be a great advantage when dealing with the circuit transfer function. ठीक है, तो ये इस तरीके का आपकी चीजें हैं, इसलिए डेसिबल में क्या इंपॉर्टेंस होती है, बॉडी प्लॉट की इंपॉर्टेंस इसके मैग्नीट्यूड या आपके जो लॉगरिथम स्केल है उसी कारण आपका मेनली एडवांटेज इसको मिलता है। नाउ यू आर हैविंग ऑन योर स्क्रीन बॉडी प्लॉट एंड इट्स बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट या बॉडी एम्पलीट्यूड प्लॉट। सो अगर हम किसी भी सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने क्या बताया कि वी आर हैविंग अ ट्रांसफर फंक्शन। So in your transfer function, we are having a simple poles and simple zeros. We can have poles or zeros at origin. We can have a quadratic poles. So there are a lot of things are in your transfer function. But अगर हमें एक बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है तो हमें इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को समझने आना चाहिए कि हम उनका सेपरेटली बॉडी प्लॉट कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपली जब हम सिंपल पोल से सिंपल जीरोस की बात कर रहे हैं तो सिंपल पोल से सिंपल जीरो वो पोल्स और जीरोस कहे जाएंगे जो ओरिजिन पे नहीं है। पोल्स होंगे तो यू कैन सी दैट जो भी आपका है वो डिनोमिनेटर में होगा। अगर हम उनको जीरोस बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट विल बी इन योर न्यूमरेटर। तो इन योर स्क्रीन दैट इज 1.11 इक्वेशन में जो दिख रहा है hs is equal to 1 upon s plus 1. Of course this is a simple pole because it is not at origin, and its value of pole is s is equal to -1.
So what exactly you have to do to find out the Bode plot or Bode magnitude plot? Just put the value of s is equal to j omega, because अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एस डोमेन टू जे ओमेगा डोमेन में। तो ओमेगा इज अ फ्रीक्वेंसी जिसको हमें बाद में वेरी करना है। तो जब भी आपको इसमें क्वेश्चन दिए जाए तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, पुट द वैल्यू j omega in place of s, so you will get h j omega is equal to 1 upon j omega plus 1. So now you are having a denominator 1 plus j omega, and now you have to get its magnitude. So you know that magnitude is nothing but denominator is a complex number, so just consider that x plus jy. So the magnitude of x plus jy is nothing but under root x square plus y square. तो in the same manner इसको आप गौर करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड व्हेन यू डिनोमिनेटर को हम लोग जब न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो यू कैन इजीली सी दैट इक्वेशन नंबर 1.12 mod of this one is equal to ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, या आप इसको सिंपली देखना चाहें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। इट मींस जो भी अंडर रूट है वो डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 ऊपर आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड था। और व्हाट यू हैव टू डू, अब इस मैग्नीट्यूड को आपको प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें ध्यान क्या देना है, there is 1 plus omega square. There are two terms in your that under root. One is your 1 and other one is omega square. So it means just to have to compare these two with each other. First है कि omega is nothing but a frequency. अब वो frequency क्या है, वो आपका omega जो है वो 1 से ज्यादा है या वो 1 से कम है. It means now you are dividing a one frequency just omega, and now you are dividing द लोअर पोर्शन, मतलब एक फ्रीक्वेंसी है जो ओमेगा है जिसकी वैल्यू 1 है, और हम उसको 1 से नीचे के साइड लेके जा रहे हैं, मतलब लेस देन 1 लेके जा रहे हैं, और हम उसको बोल रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन या लो फ्रीक्वेंसी जोन। इन द सेम वे अगर वो 1 से ज्यादा है तो हम क्या मान रहे हैं कि वो हाई फ्रीक्वेंसी जोन है। इन द सेम मैनर तो अगर हमारा इक्वेशन 1.2 को देखिएगा और 1.3 को देखिएगा कि जस्ट सपोज कि हमने अगर 1 को ओमेगा को हमने 1 से कम माना है तो देखिए वो 0 dB लिखा है। dB को ध्यान दे दीजिएगा, dB लिखने का मतलब सीधा सीधा क्या है, वह हो गया है 20 log, एंड दिस मैग्नीट्यूड मींस मॉड j ओमेगा, मॉड h j ओमेगा। तो आपके लॉग के अंदर क्या है, लॉग के अंदर है आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो उसको जब आप करेंगे तो जब कंपेयर करेंगे, अगर आपका ओमेगा स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन 1 तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी log 1 हो जाएगी, एंड log 1 becomes 0, log 1 0 होता है। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी इन इक्वेशन नंबर 1.13 दैट इज रिटन एज 0 dB, बिकॉज अगर हम इसको बोले -20 log और उसके अंदर ब्रैकेट में जो लिखा है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 ले रखी है या ओमेगा की वैल्यू 1 से हमने कम ले रखी है तो वो केवल log 1 रह जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। इन द सेम मैनर अगर हम दूसरा जोन लेते हैं जबकि ओमेगा इज वेरी वेरी हायर देन 1, तो इसका मतलब क्या है कि हम अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हमारा ओमेगा के रिस्पेक्ट में 1 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, और जब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल सी दैट इट विल गिव यू -20 log ओमेगा, एंड यू कैन सी द यूनिट इज डेसिबल। इट मींस क्या है कि हम जो भी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एसिम्प्टोटिक बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैग्नीट्यूड बिहेवियर है, और उस मैग्नीट्यूड बिहेवियर को अब हमें ड्रॉ करना है। तो इन योर फिगर यू कैन सी दैट देयर इज अ मिडिल फ्रीक्वेंसी दैट इज एक्स एक्सिस को देखिएगा, यू आर हैविंग 1, एंड ग्राफ को अगर अच्छे से देखें तो ये आप ग्राफ नजर आएगा, ये आपका सिंपल ग्राफ पेपर वाला ग्राफ नहीं है, दिस इज नथिंग बट अ सेमी लॉग पेपर।
सेमी लॉग पेपर ये मार्केट में मैंने बताया कि ये मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें एक्स एक्सिस जो है ऑलरेडी लॉगरिथम लिए हुए हैं एंड वाई एक्सिस जो होता है वो आपका लीनियर स्केल में होता है। तो आप अगर देखना चाहें तो वाई एक्सिस को देखिए तो यू कैन सी दैट दैट इज 0, after that there is the upper one is 10, minus 20, minus 30. It means there is an equal division of 10 in your y axis, whereas in x axis you can see that there is a different lines and these different lines are not equally spaced. Initially these are slight more what we can say congested. After that they are getting wider and wider, and you can see that as we are proceeding on, we are getting a slots of congested lines along with the other one. So this is nothing but a semi log paper, and जब आप इसको मार्केट से खरीदेंगे तो और थोड़ा आपको डिटेल में अच्छे से दिखाई देगा. So now in the middle of this one you are having a frequency omega is equal to 1, और उस ओमेगा इक्वल टू 1 में आप गौर करिए तो क्या नजर आ रहा है. इक्वेशन नंबर 1.13 को देखिए. इनिशियली इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, यू कैन सी दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, एंड आफ्टर दैट जब ये 1 से आगे निकला है तो यू आर हैविंग अ लाइन whose slope is -20. तो इक्वेशन नंबर 1.13 को जरा देखिए. जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 है आपका, तो इट्स आंसर इज कमिंग एज -20 लॉग ओमेगा. और इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको बात कर रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, मॉड एच जे ओमेगा इज इक्वल टू -20 लॉग ओमेगा. एक हम लोगों का पूरा एक्सप्रेशन ये मिल गया. तो एच जे ओमेगा कौन सा टर्म पे आ रहा है, कौन सा एक्सेस पे आ रहा है प्रांजलि? यस सर. मॉड एच जे ओमेगा जो है वो कौन से एक्सेस पे है? सर ये जो इक्वली डिवाइडेड एक्स एक्सेस. नहीं, कौन से एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे है या वाई एक्सेस पे है? मॉड एच जे ओमेगा मॉड किस मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में लिया हुआ है? सर एक्स एक्सेस पे. वाई पे बेटा, जो वर्टिकल है. वाई पे है. लिखा भी है सामने स्क्रीन पे, दिख रहा है? दोबारा से देखो एक बार अच्छे से. ठीक है, तो ये एच जो ओमेगा है, मतलब मेन क्या है मुझे जो समझाना है वो ये है कि देखिए ये इक्वेशन जो आई है, इसको आप अगर देखेंगे तो हम क्या, ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन रही है. जस्ट वेरीफाई दिस वन. एच जो ओमेगा जो लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है. तो वी कैन से दैट दिस इज एच जे ओमेगा इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू, अब जो पार्ट जो दिख रहा है दैट ये -20 लॉग ओमेगा. तो -20 लॉग ओमेगा मतलब इसको अगर हम एम एक्स लिखें तो x देखिए दैट बिकम्स लॉग ओमेगा. दिख रहा है आस्था, दिख रहा है बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है ये आपकी नई इक्वेशन ना होकर के ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, वे c आपको जो दिख रहा है इंटरसेप्ट इज दैट इज इक्वल टू 0, पर y इक्वल टू mx मींस यहां से आप कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो गई आदर्श, m की वैल्यू क्या हो गई इससे? सो -20 dB. यस, ठीक है, वेरी गुड. तो ये जैसे बताया आदर्श ने कि जस्ट यू कंपेयर दिस वन, तो ये m इक्वल टू -20 हो गया है. और अब ओवरऑल चीजों को देखिए तो y आपको दिख रहा है, जो आपका y एक्सिस है एच जे ओमेगा. ऑफ कोर्स यू कैन नो दैट दिस इज इन योर y एक्सिस. m की वैल्यू -20 हो गई है, और x जो है कंपेयर करेंगे तो log ओमेगा के बराबर है. log ओमेगा आपको ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि ओमेगा मींस फ्रीक्वेंसी का लॉगरिथम. तो ये ऑटोमेटिकली जब आप लॉग या सेमी लॉग पेपर ले रहे हैं तो जो ग्राफ पेपर आपको मिला हुआ है वो लॉगरिथम स्केल पे ही है. दैट्स व्हाई दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर बोर्डे प्लॉट कि अब आपको केवल और केवल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू इसके अंदर रखनी है और आपका आउटपुट y मिलता जाएगा, बिकॉज -20 लॉग ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो -20 लॉग
ओमेगा की वैल्यू आपकी चेंज मिलती जाएगी और आपको जस्ट यू हैव टू प्लॉट दिस वन। तो इसमें क्या चीज नजर आ रहा है कि स्लोप आपका -20 है, तो आप ग्राफ में सामने देख सकते हैं कि स्लोप जो लिखा हुआ है -20 dB पर डिकेड लिखा है, या इसको अगर कभी कभी क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में dB पर डिकेड लिखा हुआ है, इसको समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे y = mx लें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी y/x। y क्या है, इसमें आपको y जो दिख रहा है वो मॉड h जो ओमेगा है, बट उसकी यूनिट क्या है dB है, और x क्या है log ओमेगा है। log ओमेगा है जो वो किस में है, आप गौर करिए, log ओमेगा मतलब जो चेंज हो रहा है वो log 1 की वैल्यू कितनी है 0, log 10 की वैल्यू कितनी है 1, log 100 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इट मीन देखिए, अगर आप एक सिंपल स्केल को 0 1 2 लिखते हैं तो लॉगरिथम में आपका 0 मीन्स 1, 1 मीन्स 10, 2 मीन्स 100। तो आप गौर करिए तो देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। तो दैट्स व्हाई ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 का मतलब उसको हम लोग डिकेड बोलते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, देयर इज अ चेंज इन डिकेड। तो y = mx में हम अगर m का यूनिट निकालेंगे तो दैट इज नथिंग बट y/x। तो यहाँ आप स्लोप में देखिए तो -20 के आगे dB पर डिकेड लिखा हुआ, तो dB इज नथिंग बट यूनिट ऑफ योर y एक्सिस जो मॉड लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय डेक मींस जो भी आपका लॉग है, लॉग ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, दैट इज गोइंग टू वेरी विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिकेड। बट कभी कभी क्वेश्चंस में आपको यही चीज -6 dB पर ऑक्टेव लिखा हुआ है, तो मींस अगर आप इसी चीज को कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टेव मींस डिविजन्स आपका चेंज कर ले रहे हैं, तो y एक्सिस तो जो है वो तो आपका dB में है, बट x एक्सिस जो है वो आपका ऑक्टेव है, मतलब 10 की जगह पे अब वहां पे आप 8 पे बेस जो है वो 8 का ले रहे हैं। तो जब इसको क्वेश्चंस करेंगे आप तो वो और चीजें समझ में आती जाएंगी। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आपका साइड में जो है उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेसिबल एंड डेक एंड डेसिबल इन ऑक्टेव। So this is overall thing. Similarly, you are having your the second plot, that is nothing but अगर यहीं पे जो ऊपर वाला प्लॉट दिख रहा है फिगर 1.1, ये आपका कि अगर आपका पोल एट सिंपल पोल है तो मींस HS = 1/s। अब उसी की जगह पे अगर ये सिंपल पोल की जगह सिंपल जीरो होता तो क्या होता, जीरो होता तो जो हमारा 1/s+1 लिखा हुआ है वो s+1 जो होता वो डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर में होता, और अगर वो डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में होता तो क्या चेंजेस होते। फिर से इक्वेशन नंबर 1.1 को देखिए, तो 1.1 में इक्वेशन में 1/s+1 की जगह अब मॉडिफाई हो जाता है कि डिनोमिनेटर में ही 1 s होता। तो फिर से सेम टू सेम चीज करनी थी, क्या कि s की जगह j ओमेगा पुट करेंगे, उसका फिर से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बट अब क्या है, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बिकॉज ये आपका डिनोमिनेटर में नहीं है तो आपकी बार जो पावर जो है -1/2 है उसकी जगह पे क्या आएगी +1/2। मीन्स आपकी बार जो मैग्नीट्यूड होगा वो √1 + ω² के वाला होगा। तो इस तरीके से आप जब इसका प्लॉट करेंगे तो आपकी बार जो इक्वेशन नंबर 1.13 लिखी हुई है, क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, अगर ये सिंपल जीरोस होगा तो मैग्नीट्यूड जब ओमेगा =1 होगा तो वो तो जीरो ही होगा, बिकॉज जब कंपेयर करेंगे तो अगेन 1 प्लस समथिंग आएगा, 1 ज्यादा होगा तो log 1 = 0, तो दैट विल गिव यू 0 dB। बट व्हेन इट इज अगेन frequency is higher than 1, so because this is not in the denominator so you will not have a minus sign in front of 20, so that becomes 20 log omega only in place of -20 log omega। so फिर से अगर आप इसको कंपेयर करवाएंगे तो व्हाट यू हैव y = mx + c। तो अब इसके बाद अब इस अगर ये सिंपल जीरो है then what will be the slope in this condition if it is your a simple zero? Anybody?
सर स्लोप 20 रहेगी। वेरी गुड। तो स्लोप 20 रहेगा बिकॉज फिर से भाई जैसे आप कंपेयर करवाया, तो कंपेयर करवाने में क्या चीज नजर आई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिंपल जो आपके स्ट्रेट लाइन है उसको करिए। तो आपकी बात, बिकॉज ये टर्म आपके न्यूमरेटर में है तो माइनस साइन नहीं आएगा, तो जस्ट यू हैव टू कंपेयर दिस ओनली विद योर स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड यू विल गेट m इक्वल टू 20। तो यू कैन सी दैट बोथ द ग्राफ्स आर देयर, दोनों के आपकी रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं। तो क्या नजर आ रहा है, अगेन यू कैन सी दैट कि एट ओमेगा इक्वल टू 1 पे आपका एक डॉट बना हुआ है, जब उससे लेस देन है इसका मतलब है हम लो फ्रीक्वेंसी रीजन में है, तो उस टाइम इसका स्लोप क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज 0 dB है। बट जैसे ही आपका ये ओमेगा इक्वल टू 1 से हायर हुआ है, तो ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, जिसका स्लोप 20 है। और एज यू आर वेरिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, आप गौर करिए कि सपोज करो ओमेगा इक्वल टू 10, ओमेगा इक्वल टू 10 पे 20 log 10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स में 20 dB होगी। तो यू कैन कंपेयर दिस वन, आप इसको कंपेयर कीजिए। देखिए मैं स्क्रीन पे लिखा रहा हूँ, स्क्रीन को देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए तो क्या नजर आ रहा है, जहां पे मेरा माउस है 10 पे देखिएगा तो यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट 20। तो 10 20 log ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू जब 10 लिखेंगे तो log 10 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लीकेशन विद 20, दिस विल गिव यू your 20 dB. Similarly, when you put 20 log omega में omega इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो log 1 becomes 0, तो this is nothing but 0 dB। तो स्ट्रेट आपको दिख रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 10 हो गया, अगर ओमेगा इक्वल टू 100, 10 टू द पावर 2 को देखिए, तो 10 to the power 2 it means log 10 to the power 2 is nothing but 2, that becomes 40। so you can see that when there is a 10 to the power 2 means 100 frequency अगर है तो वो आपकी 40 पे पहुंच रही है। तो you can easily see, or you can say easily put the value of omega and you will get the value of magnitude। so this is nothing but a simple pole। तो ये है सिंपल पोल आपका, पोल और जीरोस। तो एक आपका जो फिगर 1.1 दिख रही है, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल पोल की आपकी मैग्नीट्यूड प्लॉट का ड्रॉ कर रहे हैं। इन द सेम वे जो डिनोमिनेटर नीचे वाली आपकी जो फिगर दिख रही है फिगर 1.2, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ सिंपल जीरो। तो ये हम यहाँ पे ही इसको अभी यहाँ पे रोक रहे हैं बिकॉज ये इनिशियल पार्ट है। थोड़ा सा इसको आज जाके और अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा जो भी नोट्स आप लोग के पास है इस मटेरियल को मैं अपलोड कर दूंगा। बट आज मैं मेन स्क्रीन पे आ रहा हूँ और तो ठीक है, ये मैं मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे अभी आज मैं इतना ही लग रहा हूँ बिकॉज बूढ़े प्लॉट को थोड़ा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के रिस्पॉन्स में, अगर ग्राफ पेपर आप लोग थोड़ा सा, ये सेमी लॉग पेपर अगर आपको मिल जाए या उसको आप थोड़ा सा ऑन नेट देखिएगा तो यू विल अवेयर ऑफ कि सेमी लॉग पेपर होता कैसा है। देन यू जस्ट स्टार्ट डूइंग अ सिंपल क्वेश्चन दैट इज सिंपल पोल्स या सिंपल जीरोस। तो बट बिफोर गोइंग टू दिस वन, पहले इसका जैसा जो आज थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा लॉगरिथम के अपने जो फंडामेंटल्स हैं कि log a b that is equal to log a plus log b, it means this is nothing but a logarithm operation। in the same way simple poles and simple zeros हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो जाहिर सी बात है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन यू आर पुटिंग s इक्वल टू j ओमेगा। सो हाउ you will find out the value of a complex number that is nothing but under root x square plus y square। after that just take the 20 log and the value of that magnitude, so you will get a magnitude in decibel। so these are the certain points on which you have to work, and as soon as you aware of this type of operation, this you can say to get the value of magnitude this slide becomes easier, right? So any question till now in this topic, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो?
अभिषेक, ठीक है आदर्श, कोई और दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा जा करके। अभी इस टॉपिक को और एक्सटेंड हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। धीरे धीरे टॉपिक जैसे जैसे थोड़ा सा इम्प्रूव होता जाएगा, वैसे वैसे ही आपके और बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होते जाएंगे। बट जस्ट टेक एनी you can say literature or book, whatever you have, and just go through that. You need just a basic concept, and when we do the questions, a full-fledged question, and we will have a Bode plot of all the component that is available in your transfer function. And when you combine these all components, then you will aware of exactly what is Bode plot and what is you can say magnitude and phase responses. And how you will get the stability, there is another thing. When we have magnitude plot as well as phase plot in the same time, then we can only analyze the stability of the system, right? तो थोड़ा सा आज पढ़िएगा इसको, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू।